السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ دہلی کے 2 روزہ دورے کے دوران تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملکارجن کھڑگے سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے ذریعے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی راہل گاندھی کے ساتھ صبح 10 بجے کھڑگے کی رہائش گاہ پہنچے۔ ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ نے تلنگانہ میں سائنٹیفک انداز میں کرائی گئی ذات پات کی مردم شماری کی تفصیلات پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستی اسمبلی اور قانون ساز کونسل میں تعلیم، روزگار، ملازمت کے مواقع اور مقامی بلدی اداروں میں پسماندہ طبقات BC کو 42% ریزرویشن فراہم کرنے والے بل کو منظوری دے کر مرکزی حکومت کو بھیجا گیا۔ ریاست میں موجودہ سیاسی صورتحال اور سماجی طبقات کے لحاظ سے تفصیلات پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے کھڑگے اور راہل گاندھی سے پارلیمنٹ میں ذات پات کی مردم شماری اور ریزرویشن کے موضوع کو اٹھانے کی درخواست کی۔ اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ کے علاوہ CPEC کمیٹی، تلنگانہ کانگریس امور کے انچارج میناکشی نٹراجن، وزراء پونم پربھاکر، شری ہری، رکن پارلیمنٹ ملو روی سمیت دیگر رہنما شریک تھے۔ BRS رہنما و سابق وزیر تلنگانہ KT راما کی سالگرہ کے موقع پر شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں لگائے گئے فلیکسی بینرز کو بلدی حکام نے نکال دیا، جس پر پارٹی کارکنوں اور KT راما کے حامیوں میں شدید ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔ BRS کارکنوں کا الزام ہے کہ صرف BRS لیڈران کے فلیکسی بورڈز کو نشانہ بنایا جا رہا، جبکہ کانگریس اور BJP رہنماؤں کی سالگرہ پر لگائے گئے فلیکسی بورڈز کو نظر انداز کیا جا رہا۔ پارٹی حامیوں نے اس کارروائی کو جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام سیاسی تعصب کا عکاس ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکام تمام سیاسی جماعتوں کے بینرز کے ساتھ یکساں رویہ اختیار کریں یا مکمل طور پر پابندی عائد کریں۔ ادھر بلدی حکام کا کہنا ہے کہ غیر مجاز اور عوامی مقامات پر لگائے گئے فلیکسی بورڈز کو ہٹانا معمول کی کارروائی کا حصہ ہے، جس میں کسی قسم کی سیاسی جانبداری نہیں برتی جا رہی۔ تاہم اس تنازع پر سیاسی حلقوں میں گرما گرم بحث جاری ہے۔ تیلگو ریاستوں میں سنسنی پھیلانے والے بیٹنگ ایپس پروموشن کیس میں ایک بار پھر نیا موڑ آیا ہے۔ اس معاملے میں اداکار وجے دیورکنڈا کو ایک مرتبہ پھر نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں 11 اگست کو حاضر ہونے کا حکم دیا گیا۔ تلنگانہ پولیس نے بیٹنگ ایپس کے پروموشن میں شامل افراد پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمات درج کیے اور جانچ کی۔ اب اس معاملے میں ED نے مداخلت کی ہے۔ ED نے بیٹنگ ایپس کی پروموشن میں حصہ لینے والی فلمی شخصیات کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اداکار وجے دیورکنڈا پہلے ہی ایک بار ED کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، لیکن اب دوبارہ 11 اگست کو انہیں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں شدید بارش کے سبب کوکٹ پلی کے بھارت نگر سبزی منڈی سے سمتا نگر، جنکل واڑہ، فتح نگر اور بالا نگر جانے والی اہم شاہراہ خستہ حالی کا شکار ہو گئی۔ سڑک پر جگہ جگہ پڑے گڑھے اور نہ صرف ٹریفک کی روانگی کو متاثر کر رہے بلکہ راہگیروں اور گاڑی سواروں کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے۔ مقامی شہریوں اور ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ بارش کے پانی سے سڑک کی حالت انتہائی خراب ہو گئی ہے۔ چھوٹے گاڑیاں ان گڑھوں میں پھنس کر الٹنے کے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں، جس سے کئی حادثات رونما ہوئے ہیں۔ اس صورتحال میں روزانہ سفر کرنا شہریوں کے لیے ایک کٹھن امتحان بن چکا ہے۔ مکینوں نے بتایا کہ وہ کئی بار اس مسئلے کی شکایت متعلقہ میونسپل حکام سے کر چکے ہیں، لیکن اب تک کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں کی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی لاپرواہی عوام کو خطرے میں ڈال رہی ہے اور اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ GHMC فوری طور پر سڑک کی مرمت کرے اور بارش کے پیش نظر احتیاطی اقدامات کرے تاکہ آئندہ کسی جان لیوا حادثے سے بچا جا سکے۔ شہر حیدرآباد میں مختلف مقامات پر پولیس کی جانب سے ڈرنک اینڈ ڈرائیو مہم جاری ہے۔ اسی کے حصے کے طور پر اسپیشل ڈرائیو کے تحت DCP سنواس ٹریفک پولیس کی نگرانی میں نرسری اسکول خیرآباد کے پاس ڈرنک اینڈ ڈرائیو مہم چلائی گئی اور اس دوران اسکول بسوں اور آٹوز کے خلاف خصوصی مہم چلائی گئی، جس میں ایڈیشنل DCP راملو اور ACP موہن کمار سینٹرل زون ٹریفک پولیس نے حصہ لیا۔ بعد ازاں اس دوران دیگر پولیس عملہ بھی موجود رہا۔ اس کا مقصد اسکول بسوں اور آٹوز کے فٹنس اور ان کے دستاویزات کی جانچ کرنا تھا تاکہ اسکول آنے جانے والے بچوں کو کسی قسم کی شکایت نہ ہو۔
సార్ ఒక్కసారి ఇట్లా ఫోటో కూడా సార్ ఒక్క నిమిషం సార్ ఒక్కసారి आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में अवामी फलाह व बहबूद को तरजीह देते हुए एक अहम कदम उठाया। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू अब टीडीपी के तमाम एमएलएस की कारकर्दगी का ज़ाती तौर पर जायजा ले रहे और उनके लिए इनफरादी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जारी कर रहे। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स और अवामी तासीरात की बुनियाद पर हर हलक़े के अवाम, पार्टी कारकुनों और मुकामी क़यादत के आरा को यकजा करते हुए इन रिपोर्ट्स को तैयार किया गया। वज़ीर आला के रोजमर्रा शेड्यूल के मुताबिक वो रोजाना 2 से 3 एमएलए से बिला मुशाफा मुलाकातें कर रहे, जिनमें हर मुलाकात तकरीबन 45 मिनट तक जारी रहती है। इन मुलाकातों में चंद्रबाबू न सिर्फ एमएलए की कारकर्दगी का तजिया कर रहे बल्कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के तई संजीदा रहने, अवामी मसाइल के फौरी हल और पार्टी को मजबूत बनाने पर भी जोर दे रहे। वज़ीर आला ने वाज़ेह हिदायत दी है कि इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को अवाम तक ले जाया जाए और जो वादे पूरे किए गए हैं उनसे अवाम को वाकिफ कराया जाए। एमएलएस ने वज़ीर आला की इस शफाफ और तामीरी पहल पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकातों में पार्टी की तंजीमी मजबूती, हलक़े इंतखाब में अवामी मसाइल, उनके हल और पार्टी ओहदों जैसे अहम उमूर पर ज़ेर बहस आ रहे। चंद्रबाबू नायडू का यह कदम पार्टी में कारकर्दगी पर मबनी जवाबदेही के एक नए दौर का आगाज करार दिया जा रहा, जिससे न सिर्फ पार्टी नज़्म व ज़ब्त में इजाफा होगा बल्कि अवामी भरोसा भी मजीद मुस्तहकम होगा। समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान के बेटे और साबिक़ रुकन असम्बली अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा। अदालत ने उनकी वो दोनों अर्जियां खारिज कर दी जो उन्होंने अपने खिलाफ जारी ट्रायल को रोकवाने के लिए दायर की थी। ये अर्जियां उनके मुबैना जाली पासपोर्ट और मुख्तलिफ पैन कार्ड हासिल करने से मुतल्लिक़ थीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए दोनों अर्जियां मुस्तरद कर दी। अब्दुल्ला आजम ने अदालत से गुजारिश की थी कि रामपुर की एमपी एमएलए अदालत में उनके खिलाफ जारी मुकदमात की कार्रवाई को मनसूख किया जाए, ताहम अदालत ने उनकी दलीलों को मुस्तरद करते हुए ट्रायल जारी रखने का हुक्म दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर वकील शरद शर्मा के मुताबिक ये मुकदमा अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड और एक मुबैना जाली पासपोर्ट से मुतल्लिक़ है। अदालत ने इस मामले पर 1 जुलाई 2025 को समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया था, जो अब सुनाया गया है। इस फैसले के बाद अब अब्दुल्ला आजम के खिलाफ रामपुर की अदालत में मुकदमात की समाअत जारी रहेगी। मस्जिद नबवी में देख रेख खसूसन खालिनों सफाई का खसूसी ख्याल रखा जाता है ताकि ज़ायरीन को साफ सुथरा माहौल मैसर आए। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के देखभाल के उमूर की जनरल अथॉरिटी ने एक हालिया बयान में बताया कि मस्जिद नबवी में खालिनों पर खसूसी तवज्जो देती है। मस्जिद में 25,000 से ज्यादा खालिन बिछाए गए हैं। सऊदी खबर से इदारे के मुताबिक इनमें 14,000 से ज्यादा सहनों, 6,150 राहदारियों और 5,500 खालिन मस्जिद की छत पर बिछाए गए हैं। मस्जिद नबवी में बिछाए गए हर खालिन में एक RFID इलेक्ट्रॉनिक चिप नस्ब है, जो इसके डेटा, लोकेशन, इसके बनने की तारीख, वॉशिंग शेड्यूल, मस्जिद और बैरूनी हिस्सों में खालिनों की मूवमेंट को ट्रैक करने में मदद करती है। इससे ऑपरेशनल कारकर्दगी को बढ़ाने और खिदमत के मियार को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। मस्जिद नबवी में दिन में 3 मरतबा खालिनों की सफाई की जाती है, जबकि 1600 लीटर जरासीम कश मवाद का स्प्रे इस्तेमाल किया जाता है। खालिनों को मुअत्तर करने के लिए 200 लीटर खुशबूदार मवाद का इस्तेमाल किया जाता है। 150 खालिन यौमिया बुनियाद पर धोए भी जाते हैं। ये तमाम इक़दामात मस्जिद नबवी में ज़ायरीन और नमाजियों को एक महफूज और रूहानी माहौल फराहम करने के हवाले से अथॉरिटी के अज़्म को ज़ाहिर करते हैं। रूस में एक बड़े तैयारा हादसे की खबर सामने आ रही। दरअसल रूस के दूर मशरिक में तकरीबन 50 लोगों को ले जा रहा एक तैयारा अचानक गायब हो गया। कुछ देर बाद उमूर इलाके में ये तैयारा हादसे का शिकार हो गया और इससे पहले रीजनल गवर्नर ने जानकारी दी थी कि रूस के AN-24 मुसाफिर तैयारे का हवाई ट्रैफिक कंट्रोल से अचानक राब्ता मुनक़ता हो गया। रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुसाफिर तैयारा
अंगारा एयरलाइंस का था और आखिरी बार जब उससे राब्ता हुआ तो वो चंडा हवाई अड्डे से कुछ किलोमीटर के फासले पर था। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया। ये इलाका चीन की सरहद से काफ़ी करीब वाक़ है और इस इलाके में करीब हमेशा मौसम काफ़ी ख़राब रहता है, जिससे तैयारों के लिए परवाज़ करना मुश्किल भरा होता है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि मुसाफिर तैयारा के लापता होने की खबर आने के बाद मुकामी इंतज़ामिया और एविएशन अथॉरिटी ने फौरी तौर पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी। बचाव दस्तों को जंगलों और पहाड़ी इलाकों की तरफ रवाना किया। अंदेशा जाहिर किया गया कि तैयारे ने क्रैश लैंडिंग की होगी या किसी कम्युनिकेशन सिस्टम में खराबी आने की वजह से तैयारे से राब्ता मुनक़ता हो गया होगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।